do you understand about like economic offense? Financial loss. What about others? I want input from all of you. Hawala money. Okay. What about others? Fast, guys. Be fast. Be quick. Financial scams. Great. What about others? Financial fraud. Okay. Quick, 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 guys. There are multiple students are present, and I can see answer from three, four of you. Financial issues, cyber financial crimes. What about others? Quick, guys, quick. Financial issues, tax and GST, banking, financial system से जुड़े कानून का उल्लंघन करना, black money, money laundering, scams related money. Okay. Bank fraud, offense involving money, UPI related taxation, etc. Okay. White collar fraud. What are these frauds? White collar. Trafficking money, financial issues, enforcement directorate. Okay. Oh, cool. So I can see that all of you are a little bit aware and you know the basic idea that what these economic offenses, are talking about and what exactly this particular session will contain. Okay. So guys, one thing I want to make clear before starting the session. I'll ensure that you'll understand the whole idea about economic offense. You'll understand the related laws which you will need to read and understand if you deal with the client of economic offense. And you'll understand that if you decide to practice specifically in, EOW wing, if you decide to practice specifically in economic offense, what are laws will be required and what are important sections that you will need to have, idea of. Okay. Today's session will be more on discussion part, so make sure that you interact. Okay. Money earned due to unauthorized income source. Okay. Okay. Cool. So I'll clear all the doubts. अब थोड़ा सा आपका confusion जो अब होता है usually students को, I'll ensure कि वो clear हो जाए. Also, guys, tell me, I hope all of you are comfortable in both the languages. Like, I'll keep this session bilingual because there are multiple students who do not understand Hindi and students who do not understand complete English. So I'll keep the session bilingual. Okay, cool. So, guys, as all of you, explained that economic offenses are related to, समझ में आ रहा है economic offense से कि ये finance related crime है. Okay, so money is involved यहाँ पे. And money, whenever money is involved, sometimes it takes civil nature, sometimes it takes criminal nature. So what is the difference that something becomes civil and something becomes criminal? कभी कभी आप commercial court में भी जाते हो. You sometimes take resort of commercial court as well. I am keeping it bilingual. Don't worry about it. So sometimes you go to commercial court if you have heard about it कि हमने commercial court में केस फाइल किया है. लेकिन कभी कभी हम सोचते हैं इकोनॉमिक ये तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में भी हम इसको डाल सकते हैं या फिर ये डिफरेंट टाइप का पुलिस अथॉरिटी होता है. क्या होता है, ईडी के पास क्यों जा रहा है मैटर या सीबीआई के पास मैटर क्यों जा रहा है, ये पीएमएलए में कैसे गवर्न हो रहा है, ये कैसे डिसाइड होता है. ओके, तो हम थोड़ा सा वो एरिया पहले वो जो हमारे दिमाग में क्लटर है वो उसको क्लियर करेंगे. सी गाइस, मैं कंसिडर करती हूँ आई हैव मनी, एक्स अमाउंट ऑफ मनी. ठीक है, somebody was in business with me and this person was playing fraud with me. Okay, what happened, जो फ्रॉड था ये था 70 लाख का. ओके, so this person after receiving like raw material from me denied कि मैं आपको पैसा दूंगा वापस. Now this particular offense where this person denied after this Y person is supplier of raw material and this X person uh, is person who received the raw material. So Y ने X को supply करा raw material and X denied कि मैं आपको 70 लाख रुपीस दूंगा. Y ने 70 लाख रुपए का जो भी रॉ मटेरियल था वो प्रोवाइड कर दिया. Y provided raw material worth of 70 lakh rupees to this X person and now X person denied. What do you think? Where am I supposed to go? Am I supposed to go to ED? Should I complain to CBI or should I go to commercial wing or like what exactly am I supposed to do? Any ideas? But I didn't receive any check from this person. This person didn't give me check. How am I supposed to, start the proceedings of 138 NI Act? What about others? Civil plain file, commercial court, contract law. Okay.
Complaint case. Okay. The recovery suits. Okay. So this transaction was worth of 70 lakh rupees and यहाँ पे इसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया altogether. I am supposed to go to commercial court. If this company is registered in MSME or my company is registered in MSME, I can go to MSME as well. Okay, to get my interest back. Okay, so I can go to commercial court. Fine. Why am I not going to ED? Because it's not proceed of crime. Okay, PMLA, ED, these organizations are mostly involved. Value is less is a different thing. That is there. But one more thing is there that there is no proceed of crime. It's a simple business transaction. This person just denied to give the money, but there is no illegal activity that is happening. This person is still making simple, just say this person is just making pipes, and this person was supposed to provide plastic raw material in order to make the high density pipes. That's it. So now we are going to commercial code. Okay. Second thing. If this particular amount, so just say this is the one supplier, there is another supplier A, another supplier B, another supplier C. Okay. All these suppliers have chain and ये सब मिलके इसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते थे. सबने एक बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाकर सप्लाई करने का सोचा. अब इनका टोटल अमाउंट मिला के 5 करोड़ का माल इसने ले लिया. दिस पर्सन टुक raw material worth of 5 crores, and now this X person is denying that I won't give you money and you haven't gave me any raw material. Also, this person actually generated reverse bills against all these persons and claim GST input as well. Okay. This person denied that I did not receive anything from your end. Okay. This person, just X person, A, B, C, D, E, F. Okay. So all these person, A, B, C, D, all of these person gave raw material worth of 5 crore. Now X person denied कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, आपने मुझे कोई सामान ही नहीं दिया, सर डिनाई कर दिया ऑल टुगेदर. ये जो अमाउंट है कितना है 5 करोड़ का. और अब नोटिस किया जा रहा है कि सबके साथ यही करता है, सारे सप्लायर्स के साथ यही करता है. ये फर्स्ट अमाउंट देता है, फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट होता है वो सबको देता है, उसके बाद ये सबका इंस्टॉलमेंट रोक देता है, किसी को पैसे नहीं देता. सो इस सिचुएशन में आपको दिख रहा है कि ये तो फाइनेंशियल फ्रॉड कमिट करने की कोशिश कर रहा है सबसे. और एल्स अनदर सिचुएशन, मैं आपको सिचुएशन समझाती हूँ पहले आज. ठीक है. सो एक और सिचुएशन हो गई कि देयर वाज दिस प्रॉपर्टी ए जिसकी वैल्यू थी से 10 करोड़. ए पर्सन की प्रॉपर्टी थी. इसने क्या किया, बी पर्सन को ये प्रॉपर्टी 2 करोड़ में बेच दी कैपिटल गेन्स टैक्स से बचने के लिए. कितनी की थी ये? 10 करोड़ की. कितने में बेची? या फिर अब मान लो 5 करोड़ में बेची. चलो 5 करोड़ में प्रॉपर्टी इसने बी को बेच दी. और यही काम ये हमेशा करता है. दिस पर्सन एक्चुअली डू द सेम वर्क एवरी टाइम whenever this person purchase a property and then sell it for like less amount, but this person actually received rupees 15 crore in reality, but only showed 5 crore on papers so that this person can evade tax. So now this is also offense related to economic, and then taxation also comes here, tax avoidance. Okay. Another situation. A, this is company A. Till 8. This company A has a product named Dolma. Okay. Dolma perfume बनाते हैं ये. Okay. And now this company C, D, E, F, what they did, they took this Dolma product and they started selling this Dolma product on their own website. But technically, also they didn't take any license and they never gave any royalty to this Dolma. No, tomorrow there will be no session. So they didn't give any like a royalty to this A person who is the owner of this Dolma perfumes.
But they started selling this Dolma perfume. That too, for example, this Dolma perfume was worth 7,000 per perfume, and they sold this perfume worth 12,000. Okay, all of these, maybe on Amazon, Flipkart, or anywhere. Now they earn all of these in combination. They earn rupees, say 15 crore. Okay, so in this situation, they were not supposed to sell somebody else's product. This person created, this person was supposed to sell. If you're selling, you're supposed to give any royalty or maybe like profit to this person. You didn't give that. In fact, you actually purchased that product for less amount, 7K, and then you like sold this product worth 12K. So now you can see there is some issue and economic offense is committed here. एबल टू अंडरस्टैंड, एबल टू गेट आइडिया। अब आपको यहाँ से दिमाग में शुरू होगा कि अच्छा ये आईपी का मैटर भी तो सकता है। दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यस। दिस मैटर इज कनेक्टेड टू टैक्सेशन एंड प्रॉपर्टी, यस। This particular matter is connected to, cheating also, fraud also, because this person generated for fraud bills also. This is fine. All these matters are also associated to other things, but they are offense of economic nature. Okay. And for that reason, we have economic offense wing. What wing? If economic offense wing, just write the name EOW, economic offense wing. All of you just write. Write in chat box EOW, economic offense wing. 3 crore is the amount. So minimum so jurisdiction, especially in Delhi, it's 3 crore. तो आपका minimum कितना fraud होना चाहिए? 3 crore का fraud होना चाहिए आपको किसी ऑफेंस को ईओडब्ल्यू के अंदर ले जाने के लिए। अब ईओडब्ल्यू क्या है? आपको मतलब दिमाग में चल रहा हो कि मैम ईओडब्ल्यू कोई कोर्ट है कि कोई पुलिस स्टेशन है, कोई स्पेशलाइज्ड विंग है क्या ईओडब्ल्यू? जैसे ईडी है, सीबीआई है, इस टाइप से है, क्या है? So guys, EOW is nothing. It's a basically specialized wing for investigation of economic offenses. तो जो भी economic offenses से related like जो भी crimes होते हैं, वो सारे क्राइम जिसकी जो पिक्यूनियर जुरिसडिक्शन है वो 3 करोड़ से ऊपर है, आप उसको इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में डाल सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा मैटर एक्सपेडाइट मैनर में इन्वेस्टिगेट होता है। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं जो चीजों को थोड़ा क्लियरली और बेटर वे में एनालाइज कर पाते हैं। यू अंडरस्टैंड दैट पुलिस ऑफिसर्स डू नॉट हैव दैट एक्सपर्टीज, दे डोंट नो मच अबाउट अदर थिंग्स, दे डोंट नो अबाउट हाउ frauds are being committed, how proceeds of crime are being treated. So these economic offenses wing, no, it's not an independent body, it's not an independent body. This particular economic offense wing caters the need of people who are victim of these financial frauds. जैसे आपने सुना होगा पॉन्जी स्कीम, ठीक है? कोई एक कंपनी चलाता था और यहाँ आप कोई कंपनी चलाता था, कोई कंपनी चला रहा था और वो सबसे पैसे देता था। एंड उसने बोला जो आपकी एमएलएम्स होती है, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम, वहां सबसे पैसे लेता था और उसको बोलता था कि चलो 10 दिन बाद आपको पैसा मिलेगा, 10 दिन बाद आपको मिलेगा, 4 लोग और जोड़ोगे तो इतना कमीशन, इतना वो मिलेगा। ऐसे करते 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 बहुत लोगों के पैसे चले गए। तो ये क्या हुआ? ये भी एक इकोनॉमिक ऑफेंस से रिलेटेड मैटर हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के मैटर्स भी इसमें जाते हैं। सो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के अंदर मल्टीपल तरीके के मैटर जा सकते हैं जो कि इकोनॉमिक ऑफेंस से रिलेटेड है, जहाँ पे पैसे से रिलेटेड फ्रॉड कमिट हुआ है और जो 3 करोड़ से ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे पीएमएलए भी यहाँ पिक्चर में आता है। ठीक है, तो यहाँ इन्वेस्टिगेशन होने के बाद रिस्पेक्टिव कोर्ट में आप जाते हो। ठीक है, यहाँ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के पास पावर होती है, आपको अरेस्ट भी कर सकते हैं। So this particular economic offense wing can also arrest you, but the difficulty is when you go for bail. Basically, the bail is a little bit difficult here. When it comes to commercial matter and all, you see, you do not get arrested like prima facie for the very first time. But when it comes to these matter, you get arrested. Sometimes police sends you summon also. You have to, go there and have to cooperate with police officers. You have to tell people that, tell police officers that I did not commit or this is a false complaint and all. And then you have to prove that. That's a different thing. But these, basically this particular wing is serious in nature. So they are like police and government is also considering this fact that these offenses are of serious nature and multiple people gets affected.
Okay. If multiple people gets affected from these offenses, then they are supposed to take care of these offenses in a better manner. Okay, so this particular wing comes into the picture. अब मैं थोड़ा सा और बेटर वे में आपको चीजें समझाती हूँ कि आपको बेसिक आइडिया लगा कि अच्छा इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ये करती है। अब उसके आगे मैं आपको रियल केस भी बताऊंगी। देयर वाज वन केस लाइक आई वाज वर्किंग ऑन, एंड उसमें क्या हुआ था, किसमें में वी डेल्ट विद द सिचुएशन एंड ऑल। ओके, जस्ट अ सेकंड। सो वी हैव कवर्ड दिस, किस किस टाइप के होते हैं, प्योर सिविल क्रिमिनल, क्रिमिनल कंडक्ट एंड रेगुलेटरी कॉन्ट्रवेंशंस। अब मैं कुछ सेक्शंस के बारे में बात करूंगी और कौन कौन से लॉज हैं जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे होता क्या है ये भी आपको मैं बता देती हूँ। जैसे आप नॉर्मली पुलिस स्टेशन में जाते हैं अपनी एफआईआर करवाने, यहाँ पे भी आप एफआईआर कराने जाते हैं अपनी। ओके, सो एफआईआर गेट्स रजिस्टर्ड। अगर यहाँ पे आपकी एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही है, सो व्हाट हैपेंस, यहाँ पे आपकी अगर एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही तो आप कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में जाके एफआईआर रजिस्टर कराते हैं थ्रू कंप्लेंट। ठीक है, जैसे 173 बीएनएस के अंदर, बीएनएस के अंदर आपकी कंप्लेन रजिस्टर होती है, वैसे ही यहाँ पे हम मजिस्ट्रेट को दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट यहाँ पे डायरेक्शन देता है और फिर आपकी कंप्लेन आपको जो है फाइल में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज होती है। ठीक है, तो अब समझ रहे हैं कि चीजें सेम चल रही है। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आया चीजों के इंटेंसिटी पे, फोकस पे। मुझे पता है कि ऑफेंस बड़ा है, अगर सोसाइटी एट लार्ज का विश्वास ही हो जाएगा कि हर कोई आके फ्रॉड कमिट करके पैसा लेके भाग जाएगा, तो पीपल विल गेट अफ्रेड। वो कोई बिजनेस नहीं करना चाहेंगे, वो किसी से कोई ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहेंगे, कहीं बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं करना चाहेंगे। एंड फॉर दैट रीजन गवर्नमेंट thinks that it is a serious thing and we need to take care of this particular thing. Yes, you will get recording of this, remember it. अब क्या क्या सेक्शंस होते हैं जो यहाँ पे पिक्चर में आते हैं, तो मैं बीएनएस से स्टार्ट करती हूँ। कॉन्स्पिरेसी, कौन कौन सेक्शन एज अ एडवोकेट। अब आप एज एन एडवोकेट सोच रहे हो कि अच्छा आपके पास एक क्लाइंट आता है, तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि मेरे साथ ये सारे ऑफेंसेस हुए हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ना मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं अक्सर एमएलएम्स एंड ऑल में। तो कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गई, जो कि बीएनएस के सेक्शन किस में है, यहीं पे सेक्शन याद करके जाना है सबको। सेक्शन मैं जाने से पहले सबसे पूछने वाली हूँ। ओके, सो मेक श्योर दैट यू नो एंड रिमेम्बर द सेक्शन नंबर ऑल्सो। कॉन्स्पिरेसी बीएनएस सेक्शन 61। सो यहाँ पे क्या हो, कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है, मल्टीपल लोग इन्वॉल्व होते हैं, सबने मिलके काम क्या होता है। ऑर्गेनाइज क्राइम सेक्शन 111, सेक्शन 111, सेक्शन 112 एंड सेक्शन 111, 112 and 113. So this is for petty offenses, this is for terrorist activity, and this is for organized crime. So 111 talks about organized crime. You see, these particular offenses actually takes place in an organized manner, and white collar crimes actually are organized crimes, because in white collar crimes we need planning, plotting, and then implementation as well. So section 61 talks about what, guys? Just write. Section 61 talks about what? Great, conspiracy. Organized crime section, organized crime talks about what? Okay. Breach of trust, another section, section 316. Breach of trust में क्या होता है, मैंने आपने सुना होगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यू हैव हर्ड अबाउट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। सो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज यू trusted somebody, okay, you gave that person xyz property, and that person like use that property or misuse that property, okay, use that property in their own benefit and against you. That's breach of trust, and that breach of trust comes under section 316. What section? 316. Okay, देन चीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, यहाँ पे बहुत काम आएगा। सो वेन एवर यू गो, आपके पास सबसे पहले कोई आता है ना, अगर कोई आपके पास क्लाइंट आता है, कोई विक्टिम आता है, तो वो ये देखता है कि अच्छा आप किस सेक्शन के अंदर एफआईआर करवाओगे। अमाउंट तो आपको समझ में आ गया कि चलो 5 करोड़ का फ्रॉड है, पर ये सेक्शंस भी तो इन्वॉल्व करोगे आप। सो दीज आर द सेक्शंस एंड यू नीड टू रिमेंबर। इज आई अंडरस्टैंड दैट वी हैव वर्ल्ड ऑफ चैट जीपीटी, आई अंडरस्टैंड दैट वी हैव वर्ल्ड ऑफ क्लॉड, बट trust me on this one thing, when you know things your mind in your mind, and when you remember things, that's when your mind can process. So without raw material your mind cannot process, so you have to put something in your brain. I get it that knowledge is out there, but you need your brain to think, and for that reason you need information, and make sure that you remember that information doesn't mean that I just read it and I forgot. You need that information in your brain so that you can create nexus between the things. Okay, just a normal advice, like if you want to take this advice you can take.
Cheating. Section 318. Cheating talks about which section? Which section is there in cheating? Section, right? 318. Cool. Personation. So you know impersonate somebody's identity. आप a person हो, आपने बोला कि मैं तो just say mm, mm, whose name should I take? You just said that I'm Nikhil Kamath. I invest this and that amount in this particular website, and this is my website, and you were not Nikhil Kamath. You just impersonated his ID. So, and everybody invested their amount and then you ran away with the amount. So that is impersonation. Okay. Forgery, amazing section, extremely useful. So you make false documentary records in order to receive, the benefit. Falsification, willful destruction, alteration, if you do, or by with the help of clerk and all, then section 344. So these are the important section that is there in BNSS. So I'm just removing the slide and I want all of you to just write. So section, like, tell me you can put off this section. I haven't like, started the caption thing. You can stop from your end. Yeah. So tell me, section of conspiracy, cheating, organized crime, terrorist activity, impersonation, mm-hmm. Impersonation. Okay. So जो जो गलती करी है, you can see किसी ने कॉन्स्पिरेसी में लिखा था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट किसी ने यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइज क्राइम लिखा था, किसी ने फॉर्जरी में शायद शायद इम्पर्सनेशन में गलती करी थी, बट नाउ आई थिंक इट्स सॉर्टेड। ठीक है। सो पीएनएस का तो हमें क्लैरिटी आ गई कि अच्छा ये सेक्शन से इन्वॉल्व करता है, और मैं अगर एफआईआर करवाने वाली हूँ तो क्योंकि क्रिमिनल एलिमेंट देना है, कमर्शियली डिस्प्यूट तो हुआ है, ये तो मुझे पता चल चुका है कि अच्छा यहाँ पे कमर्शियल इशू है, यहाँ पे पैसों का इशू है, तो मैं इसको सिविल नेचर भी दे सकती हूँ, ये मेरी मर्जी। बट इफ आई वांट टू गिव इट अ क्रिमिनल कलर इन ऑर्डर टू, ये यूज भी इसलिए होता है क्योंकि जब चीजों को क्रिमिनल कलर मिल जाता है तो सेटलमेंट होने के चांसेस, या सामने वाला जल्दी सकम हो जाता है प्रेशर के अंडर, एंड यू गेट योर अमाउंट अर्ली। ओके। जब सिविल चलता है तो आपको भी पता है कि बहुत टाइम लगता है, बहुत लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, वहां पे अरेस्ट का स्ट्रेस नहीं रहता, यहाँ पे तुरंत अरेस्ट हो जाता है। सो पीपल रिस्पॉन्ड बेटर टू दीज पर्टिकुलर लॉज। ओके। अब इसके अलावा और कौन कौन से लॉज हैं जो इसके पिक्चर में आते हैं और जो इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं? ईओडब्ल्यू की मैंने बात कर दी है, सो पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसके लिए स्पेशल कोर्ट है। एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। एनीबडी, आर यू अवेयर लाइक व्हाट इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम? डू यू नो व्हाट इज प्रोसीड ऑफ क्राइम? नंदिनी, ओके। नो, नो, कूल। सो गाइस, मैंने किसी का किडनैपिंग करी। मैं करने वाली हूँ आज किडनैपिंग। किसकी करती हूँ मैं आज? भूमि की किडनैपिंग करती हूँ। ठीक है। सो आई किडनैप्ड भूमि and I called Bhumi's family that if you want Bhumi back, give me 10 crore rupees. So what happened? Bhumi's family did not inform the police. They simply gave me 10 crore rupees and I sent Bhumi back to their home. Now this 10 crore rupees is basically proceed of crime, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने ये पैसा कमाया, पर क्या रीजन था, किस तरीके से कमाया? I did illegal act because kidnapping is not legal, it's an offense. So this is a proceed of crime. Similarly, मैंने कोई प्रोडक्ट लिया, जैसे डोलमा, मैंने परफ्यूम लिया था। मैंने क्या किया, मुझे पता था कि किसी और का प्रोडक्ट है, आई न्यू दैट दिस प्रोडक्ट इज नॉट माइन, एंड आई न्यू दैट दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट contains perfume. What I did, I took this product, I replaced, I replaced this product's like internal configuration with
something which is illegal in India, for example, just say maybe with some drug or something, and I started selling it to people in the name of Dolna perfume. Okay. Now, I know that this is not a legal activity, but what I'm doing, I'm selling drugs. That too in somebody else's name. So I'm impersonating. At the same time, I'm selling drug. So it's a crime. And the money I'll earn using this particular method will be proceed of crime. So guys, is it clear now? What is proceed of crime? जो भी पैसा आपने कमाया है क्राइम करके, वो होता है प्रोसीड ऑफ क्राइम। ठीक है, क्लैरिटी हो गई यहाँ पे। पीएमएलए में वो सारी चीजें इन्वॉल्व होती है जो प्रोसीड ऑफ क्राइम होते हैं। कंपनीज एक्ट में क्या होता है कि आप कोई भी फ्रॉड करते हैं, आप पैसा जिसको कहते हैं कि मैंने पैसा निकाल लिया कंपनी से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया आपने, अपने फ्रॉड कमिट किया, आपने किसी और कंपनी में लगा दिया पैसा निकाल के। ठीक है, अब टेक्निकली प्रोसीड ऑफ क्राइम नहीं, कंपनी से मैंने पैसा कमाया लीगली, लेकिन वो मेरे को बिलोंग नहीं करता था, तो मैंने कंपनीज, यहाँ पे वो ब्रीच हो गया। ठीक है, सीरियस फॉर इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, वो यहाँ पे पिक्चर में आती हैं। देन जीएसटी में क्या करते हो, आप बहुत सारे फ्रॉड्स करते हो, आप गलत बिल जनरेट कर देते हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम क्लेम कर लेते हो। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट होता है, सेबी एक्ट होता है। ठीक है, सो आपने, इफ यू रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर फेमस केस of Sahara. Do you remember? Do you know about the Sahara case? And do you know that it was connected to SEBI and all? So these cases are related to securities manipulation and insider trading, and they, use that money for something else. They were not supposed to use that money. If you don't know, then it's a very popular case. Sahara, Subrat Roy was a person, and this person got arrested, and now he's no more. But this was a big company. So Sahara was a big company. In this company, what people used to do, people used to invest their money. So in form of recurring deposit (RD), incurring a fixed deposit (FDs). Sorry. In terms of yes, there are multiple web series also which are present. And what happened, so they used to also take money in the name of community, or like there was some other schemes that they should run, then mutual funds and all. So multiple things were there, like they were running. What happened at the end, people used to receive their money like in the beginning, but after like 15-20 years, people stopped receiving their money back because they reinvested that money somewhere else, and they couldn't get the returns, and now people are unable to get their money. And post that, this person who was the head of the Sahara company, that person got arrested, and then SEBI took the action and all, and then like in the jail, he lost his life. But he was a big person, and he literally employed millions and millions of people at that time. Everybody, included, like everybody used to be the Sahara agent, and almost, I will say that one in every four Indian have their money in Sahara. That is the kind of craze this company had. Okay, but then things turned back, and then it became a criminal activity ultimately. IT Act. So if you are, somebody who did financial fraud and all, then you can end up, in EOW wing. Then FEMA, Foreign Exchange Management Act and all. So then when it comes to FEMA में क्या होता है guys? FEMA में like बाहर से फॉरेन अथॉरिटीज से आपका कनेक्शन होता है, वहां पे फॉरेन अथॉरिटी से बाहर से पैसा आता है, सो आप तब यहाँ पे टैंगल होते हो। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, पैसा अगर इन्वॉल्व हो रहा है और एक थ्रेशोल्ड से ऊपर हो रहा है, तो ईओडब्ल्यू में तो आप जा ही सकते हो। उसके अलावा और रिजॉर्ट्स है, वो है, मेरे पास ईडी है, मेरे पास सीबीआई है, मेरे पास सब कुछ है, बट ईओडब्ल्यू इज देयर। सो अगर मैं किसी पुलिस स्टेशन में आपको बोलूँ कि ए पुलिस स्टेशन है, बी पुलिस स्टेशन है, सी पुलिस स्टेशन है, ये ईओडब्ल्यू है, ये साइबर सेल है, एंड ये नॉर्मल पुलिस स्टेशन है जो आप जाते हो, तो आपका पैसा 3 4 5 करोड़ से ऊपर है, तो आप यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, आप सबसे पहले सोचोगे मैम मैं ईओडब्ल्यू में तो जाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सीरियस ले रहे हैं, बात को समझते हैं सब लोग, बात ही पैसे की हो रही है, काम ही पैसे का हो रहा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे जाऊंगी। अगर मेरे को किसी ने थप्पड़ मार दिया तो मैं ईओडब्ल्यू में जाऊंगी, इससे थप्पड़ मारा है मुझे 10 10 लाख रुपए के लिए, बट फिर भी मैं ईओडब्ल्यू में तो नहीं चली जाऊंगी। ठीक है, क्योंकि मैटर का फोकस थप्पड़ है, पैसा शायद नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं थोड़े से मिथ्स एंड रियलिटी समझाती हूँ, ये बहुत ही बेसिक है बट थोड़ा समझने के लिए जरूरी है। जैसे हमें लगता क्या है कि जो ईओडब्ल्यू है वो ऑटोमेटिक रिकवरी कोर्ट है कमर्शियल डेट के लिए। दैट्स रॉन्ग, मैंने बिगनिंग में क्लियर कर दिया, स्पेशलाइज्ड पुलिस यूनिट है। ठीक है, दूसरा, इट इज गवर्न बाय यूनिवर्सल पैन इंडिया फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड, नो,
यहाँ पे मल्टी विक्टिम फ्रॉड्स, फॉर्जरी और शेल एंटिटी स्ट्रक्चर्स वाले जो मैटर होते हैं वो हैंडल होते हैं, और कोई पैन इंडिया एजेंसी नहीं है इसके, लाइक ये पर्टिकुलर एरिया में होता है. एंड इट इज a replacement of SEBI, ED, SFI. No, it's not a replacement. It is like basically it's not a replacement. It the proceedings of EOW can go hand in hand, and it can assume territorial power without legal connection. No, it allocation depends on the area. So if offense happened in Delhi, then Delhi like rules will be there and all. तो यहाँ पे ये क्लैरिटी हो गई. ठीक है. दूसरा जुरिस्डिक्शन जो होती है, पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन, वो एरिया टू एरिया डिपेंड भी कर सकती है. सो देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट ओके दिस एरिया लाइक 3 करोड़, तो जैसे दिल्ली में है तो बाहर भी वही होगा. ठीक है. अब मैं ड्राफ्टिंग एंड ऑल बाद में बताऊंगी आपको. तो जस्ट सेकंड, मैं आपको ड्राफ्टिंग का पार्ट बाद में बताऊंगी. उससे पहले मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगी कि कौन सी चीज कहाँ से अपन कनेक्ट कर देते हैं. जैसे ये डिस्कशन है, ये वाला जो पार्ट मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा डिस्कशन पार्ट है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड. या सो यूपीआई कार्ड से रिलेटेड अगर कोई फ्रॉड है, या आपका अकाउंट अकाउंट थोड़ा सा किसी ने मैनिपुलेट कर दिया है, या फिर अकाउंट फ्रीज हो गया, या किसी ने पैसे निकाल लिए आपके बिना बताए, तो आप कहाँ जाते हो? जस्ट टेल मी, कहाँ जाते हो आप? बैंक. ओके. साइबर सेल नहीं जाते आप? राइट. नाउ अगर फॉर एग्जाम्पल आपके साथ चीटिंग या फॉर्जरी हुई है, तो आप कहाँ जाओगे? चीटिंग और फॉर्जरी है तो आप कहाँ जाओगे? बैंक क्यों जा रहे हो आप? पुलिस स्टेशन जाओगे. और अगर मेरे पास मेरी फॉर्जरी अगर फॉर्जरी हुई है 3 करोड़ से ऊपर की, और मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जा सकती हूँ? प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है. मुझे पता है कि किसी ने प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, लाइक बेसिकली इसने जो पैसा कमाया है इट इज अ प्रोसीड ऑफ क्राइम, तो मैं कहाँ जाऊंगी? जस्ट टेल मी. प्रोसीड ऑफ क्राइम में मैं ईओडब्ल्यू जा रही हूँ. जब मेरे पास ऑप्शन है स्पेशलाइज एजेंसी में जाने का, सो व्हाई विल आई गो टू नॉर्मल एजेंसी? ईडी. राइट. ईओडब्ल्यू में भी मैं जाके बोल सकती हूँ. ठीक है. यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपके साथ फ्रॉड हुआ हो, आप इन्फॉर्मर भी हो सकते हो. दैट इज ऑल्सो वन मोर थिंग, दैट व्हेन इट कम्स टू ईओडब्ल्यू एंड ऑल मैटर्स, you know about any offense that was committed, you can just become be a informant and you can inform to the police officers and then they'll take care of the matter. Okay. अब फॉर एग्जांपल आप मार्केट मैनिपुलेशन करते हो, आप इनसाइडर ट्रेडिंग करते हो. ठीक है. देन वेयर यू आर सपोज टू गो? ओके. सेबी. ग्रेट. कूल. इफ यू जनरेट फेक इनवॉइसेस एंड यू डू विलफुल एवेजंस, आप फेक जीएसटी इनवॉइसेस जनरेट करते हो, तो आप सबसे पहले कहाँ जाना चाहोगे? आपको आपके दिमाग में क्या आएगा, कहाँ जाना चाहिए? जीएसटी फ्रॉड कमिट करते हो, फिर कहाँ जाओगे? गुड. जीएसटी ऑफिस. ओके. कंप्लेन करोगे आप? डीसीजीआई में. ठीक है. तो थोड़ा सा ये हमें क्लियर हो गया है. अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मेरा डेटा किसी ने लिया और उसको किसी ने सेल कर दिया कहीं और पे. ठीक है. तो अभी जो डेटा मैंने बेच दिया है, ये डेटा का जो ऑफेंस है, मैं एक कंपनी हूँ, मैंने किसी बाकी सारे अपने यूजर्स का डेटा लिया और मैंने वो बेच दिया, अब कहाँ जाना है?
और मैंने उस डेटा के 3 करोड़ रुपए कमा लिया है, 5 जस्ट 10 करोड़ कमा लिया, अब मैं कहाँ जाऊंगी? डीबीडीपी एक्ट में चली जाऊंगी, एक्ट में कहाँ जाऊंगी? ओके। सो डेटा रिलेटेड फ्रॉड्स अब डीपीडीपी एक्ट में गवर्न होते हैं। तो उसके लिए स्पेशलाइज डेटा प्रोटेक्शन कोड्स भी बनाए जा रहे हैं, तो वो एक अलग विंग हो गया। लेकिन यहाँ पे भी अगर मैं पैसा कमा रही हूँ तो आई कैन टेक रिजॉर्ट ऑफ यूडब्ल्यू ऑल्सो। ओके। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं एक चेंज समझाती हूँ आपको, थोड़ा सा काम कैसे शुरू होता है और चलता है। जैसे मेरा ऑफेंस जो है वो मैंने कमिट किया और किसी ने मेरे अगेंस्ट एफआईआर वगैरह करा दी है। ठीक है, मैंने एविडेंस एविडेंस भी दे दी है, सब कुछ हो गया है यहाँ पे। अब क्या हुआ? आपने एविडेंस कलेक्ट किए। करते क्या हो आप? एविडेंस आपने कलेक्ट करे, यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है। एनालिसिस किया कि क्या ऑफेंस हुआ है, क्या नहीं है। ठीक है। कोerसिव मेजर आपके अगेंस्ट लिए गए कि आपका तुरंत अकाउंट फ्रीज हुआ, अरेस्ट वरेस्ट हुआ। उसके बाद प्रॉपर एनालिसिस हुआ। किससे किससे करवाया हमने? फोरेंसिक एक्सपर्ट्स एंड ऑल से। फाइनल रिपोर्ट जनरेट हुई। जब भी रिपोर्ट जनरेट हुई तब मेरे अगेंस्ट एफआईआर डली। ठीक है, तो पहले मैंने ये सारी चीजें दे दी। अब बोलोगे इमीडिएटली नहीं होगा, इमीडिएटली भी हो सकता है, पर आपके पास सफिशिएंट एविडेंस होना चाहिए, बिकॉज ये इकोनॉमिक ऑफेंस रिलेटेड मैटर्स है। ठीक है। आपकी एफआईआर वगैरह हुई, एंड देन आपकी स्क्रीनिंग एंड ऑल हुई, देन मजिस्ट्रेट के पास आपको प्रेजेंट किया जाता है, सब कुछ हुआ। एंड पोस्ट दैट, लाइक बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल से लाइक आपकी रिक्वेस्ट दे दी जाती है, एंड देन फिर दैट साइकिल कैन कंटिन्यू। अगर वापस उनको चेन ऑफ एविडेंस मिलती है, कोई नया उनको मिलता है अक्यूज। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे होता है। अब कंप्लेंट मैं जब जो ड्राफ्ट करती हूँ या ड्राफ्ट करना है, तो क्या क्या मैं उसमें लिखूंगी या क्या क्या चीजें मेरे को चाहिए होगी? तो सबसे पहले इंटर्नशिप सर्टिफिकेट नहीं मिला है, प्लीज इसके बारे में बता दो मैम। आई डोंट नो व्हाट यू सेइंग, व्हाट इंटर्नशिप सर्टिफिकेट आर टॉकिंग अबाउट मेरा, बट लाइक लेट मी एक्सप्लेन द टॉपिक एंड देन वील टॉक अबाउट दैट। लाइक आई एम अबाउट टू एंड द सेशन एज वेल। सो सी, अब कंप्लेन अगर मुझे ड्राफ्ट करनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? सबसे पहले मैं देखूंगी कि कौन कौन पार्टीज है, क्या रोल है उनका, फिल आइडेंटिटी और लीगल स्टेटस। मैं समझाऊंगी कि विक्टिम कौन था, क्या हुआ था, क्या इशू था, किस किस वजह से उसका ऑफेंस हुआ है, और क्या उसके साथ घटना घटी है, कितने पैसे लगे हैं, क्या हुआ है। फिर मैं लिस्ट ऑफ डेट्स एंड इवेंट्स दूंगी वहां पे। ठीक है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जिस जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या चीटिंग हुई है, फॉर्जरी हुई है एंड ऑल। देन आई ट्राई टू गिव द डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो, मनी ट्रेल भी दूंगी, कहाँ से आया, यहाँ से पैसा आया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, मनी ट्रेल हो गया, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आई सबमिट। ठीक है। डिजिटल एविडेंस नोट आई गिव कि ये जो पूरे एविडेंसेस हैं, इसके अलावा और क्या क्या एविडेंसेस है, मैं सर्टिफिकेट भी दूंगी। सो मेक श्योर दैट व्हेनेवर यू आर गिविंग डिजिटल like evidences, you are giving certificate as well, because otherwise there'll be no credibility of your digital evidences. Then you will write jurisdiction, that इसी jurisdiction में offense हुआ है, इसीलिए I want to get my FIR registered here only. And then you just write the urgency that अगर अभी नहीं register हुई या फिर अभी cognizance नहीं लिया गया, तो this person will run, there are chances that this person will run away from the country and all, or will transfer the amount and we will never be able to trace that amount and all. So you have to write the urgency and then you just write the prayer. So that's how you, if police denies to register your FIR, अदरवाइज FIR रजिस्ट्रेशन तो क्लियर होता है, आप क्लियरली वहाँ पे सारी चीजें मेंशन करवाते हैं, किसने क्या किया क्या नहीं किया, पूरा एकदम डिस्क्रिप्शन आप दे देते हैं। बट व्हेन यू आर रजिस्टरिंग अ कंप्लेन, आप कोर्ट के थ्रू जा रहे हैं कि आपकी इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के अंदर FIR रजिस्टर्ड हो, और कर ही नहीं जा रही है, पुलिस ने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं मानता कि ये है ऑफेंस और मैं नहीं मानता, तो आप जाओगे कंप्लेन के थ्रू, मजिस्ट्रेट को सेटिस्फाई करोगे, आर्ग्यूमेंट विल टेक प्लेस, एंड देन मजिस्ट्रेट विल गिव अप्रोप्रिएट डायरेक्शन टू द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर योर FIR. Is it clear, guys? ग्रेट। अब इसके अलावा नॉर्मली जैसे हायरार्की चलती है वैसे चलती है, जीरो एफआईआर भी आप रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, वहां से नहीं हो रहा तो आप 173 में जा सकते हैं। ठीक है। इमीडिएट प्रिजर्वेशन ऑफ एविडेंसेस एंड ऑल के लिए आप क्लियर
क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि तुरंत अभी मेरे एविडेंसेस प्रिजर्व कर दिए जाए एटलीस्ट इफ नथिंग इज हैपनिंग। देन आप एसपी को भेजते हैं अपना लेटर की मेरी एफआईआर एंड ऑल रजिस्टर कर दी जाए, फिर भी नहीं हो रही है तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, ठीक है, कंप्लेन लेकर, एंड कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट डायरेक्शन देता है। अगर वहां पे भी नहीं होता तो आप रिट मूव करते हैं, इनहेरेंट जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट की, अगर अप्रोप्रिएट ग्राउंड होते हैं तो हाई कोर्ट कैन आल्सो गिव डायरेक्शन। अब आप अगर फॉर एग्जांपल विक्टिम की साइड से एक्यूज की साइड से डिपेंड करता है, ठीक है, तो वहां पे आपको क्या क्या करना है। विक्टिम की साइड से तो तुरंत आप साइबर पोर्टल बैंक वगैरह को नोटिस भेज के जो पैसा वैसा ट्रांजैक्शन आगे होने वाला है वहां आप फोन करके रोकोगे, या फिर आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल आपको पता है कि इसने पैसा कमाया है और आप उसको रोकना चाहते हो तो फ्रीज करवा दोगे। विक्टिम हो आप तो आप क्या करोगे, सीजर के कोर्ट लोग ऑर्डर लोगे कोर्ट से कि ये जो पैसा है या जो उसका एसेट है उसको सीज कर दिया जाए, ठीक है। और भी अगर तरीके सिविल सूट आप फाइल करोगे, आर्बिट्रेशन के लिए आप जा सकते हो, सेटलमेंट आप कर सकते हो, ठीक है। और भी कौन कौन से फोरम में आप जा सकते हो, कंज्यूमर फोरम में, रेरा में, सेबी में, ठीक है, एनसीएलटी एंड ऑल में, बिकॉज आपका मैटर जिस भी चीज से रिलेटेड है वहां तो जा ही सकते हो, प्लस ईओडब्ल्यू तो है ही, ठीक है। फिर बेल, अब अगर आप अक्यूज है तो अक्यूज में क्या आप देखोगे कि जो नोट आया या समन आया ये ठीक है, ओके अच्छा ये ठीक है, ओके सही अथॉरिटी से है, फिर आप बात करोगे। ऑल्सो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रैक्टिस में आप सीखते हो, जो मेरी पर्सनल ओपिनियन में मेरी प्रैक्टिस में मैंने सीखा, वो ये है कि आप कभी भी ईओडब्ल्यू के जो भी समन्स है उनको इग्नोर मत करो, बिकॉज वो समन्स अगर आप इग्नोर करते हो तो उसके जो रिpercussions होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट इग्नोरिंग दीज थिंग्स, ठीक है। आप प्रॉपर्ली एनालाइज करो, पता करो क्या क्या मेरे अगेंस्ट चार्जेस है, क्या क्या मेरे अगेंस्ट एलिगेशंस लगे हुए हैं, जैसे आपको पता चलता है तो एक उससे पहले अप्रोप्रिएट लीगल एडवाइस लो, एंड मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग एडवाइस फ्रॉम समबडी जो जानता हो चीजों को। अगर आपको नहीं आता तो आप किसी अपने सीनियर से एडवाइस लो, या somebody you think that is there and knows about that particular matter। तो ये अंडरस्टैंडिंग आप लो एंड देन ओनली ट्राई टू एडवाइस स्पेसिफिकली इन दीज मैटर, वरना अरेस्ट होती है और बेल होने में बहुत डिफिकल्टी आती है। आपको पहले पता है तो एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर दो, अदरवाइज टॉक टू द पुलिस ऑफिसर एंड देन मेक श्योर दैट इफ मैटर कैन बी सेटल्ड देन यू कैन सेटल, बिकॉज दीज ऑफेंसेस आर कंपाउंडेबल इन नेचर, यानी कि सेटलमेंट हो जाता है तो आप बिना कोर्ट में जाए यहाँ पे मामला डिसमिस कर सकते हैं, तो ये कंपाउंडेबल इन नेचर होते हैं, इसीलिए यहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब 2025 में एक अरेस्ट राइट अपडेट आया था मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। यहाँ पे क्या था, रिटर कम्युनिकेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इज इन अ लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय अरेस्टी इज कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट अक्रॉस जनरल एंड स्पेसिफिक ऑफेंस। तो कोई भी इस तरीके का ऑफेंस हो रिटर्न वे में आप लिख के दे सकते हो कि अच्छा इसलिए अरेस्ट करे, और जिस भाषा में वो समझे, ऐसा नहीं है आप वो समझता मराठी और आपने उसको हिंदी लिख के दे दी। मेक श्योर दैट लैंग्वेज इज देयर, लाइक द पर्सन हु इज रीडिंग एंड हु इज गेटिंग अरेस्टेड कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, ठीक है। So just take this example, एक developer scam में there are 70 buyers, fall approvals and title report करता है वो pitch सबको, and funds actually gets सब पैसे दे देते हैं buyers and funds actually diverted to sister concerned body, तो वो कुछ और जो भी कंपनी है उसकी उसमें पैसे कर देता है डाइवर्ट। सो यहाँ पे क्या हुआ, पहले आप आइडेंटिफाई करोगे क्योंकि चीटिंग हुई है, ठीक है। फॉल्स अप्रूवल इंक्लूडिंग पेमेंट, फॉर्जरी भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फॉल्सिफिकेशन वाया डिलीटेड डैशबोर्ड्स, एंड ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम है क्योंकि वो सिंडिकेट रन करता है इसी वे में, ठीक है। आपको समझ में आ गया रूट क्या है। ईओडब्ल्यू में आप जाओगे, रेरा में जाओगे, एनसीएलटी फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी, यहाँ आप चले गए। रेमेडी क्या है, आप एफआईआर करवाओगे, जीरो एफआईआर, क्योंकि मल्टी स्टेट विक्टिम्स हैं, आपको पता ही नहीं एग्जैक्ट कौन से स्टेट में विक्टिम, बहुत सारे स्टेट में अलग, बायर तो पूरे पैन इंडिया के थे। इमीडिएटली आप बैंक फ्रीज कराओगे, ठीक है। सर्टिफिकेट सेक्शन 63 का सर्टिफिकेट आप इमीडिएटली लोगे डिलीटेड डैशबोर्ड्स के लिए जो भी उसने डिलीट किए हैं, ओके। सो दिस इज सिंपल, लाइक एक मैंने एक अंडरस्टैंडिंग दी है कि अच्छा अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट आता है जो हम अभी तक डिस्प्यूट से ही समझ रहे थे, व्हाट इफ प्रॉपर्टी स्कैम, आई डोंट नो व्हाट यू सेइंग, प्लीज एक्सप्लेन बेटर। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप बाकी रिजॉर्ट भी यूज करते हो बट ईओडब्ल्यू में भी जाते हो तुरंत तुरंत रिलीफ के लिए, ठीक है। इफ यूर अ प्रैक्टिशनर तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे आपको क्लाइंट का रियल ऑब्जेक्टिव पता करना है, एक क्रोनोलॉजी बनाओ, डिस्टिंग्विश करो डिसेप्शन एंड एट इंसेप्शन, लाइक जब बिगनिंग में आप काम स्टार्ट करो तो आप ये देखो कि अच्छा क्या है, किस चीज से मैटर, कि सिविल मैटर को क्रिमिनल मैटर तो नहीं बनाया जा रहा है, या फिर ये भी चीज आपको ये भी ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। मनी ट्रेल आप मैप करो एंड देन डिजिटल एविडेंस को प्रिजर्व करो, टेरिटोरियल एंड सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन को क्लियरली मेंशन करो व्हेन यू आर ड्राफ्टिंग समथिंग, एंड पुलिस यूनिट, रेगुलेटर, सिविल फोरम, ये सब चेक करो। लिमिटेशन डेट्स भी आप चेक करो कि आप लिमिटेशन एरिया से बाहर नहीं हो रहे हो, ठीक है। प्रेयर जो है वो ऐसी मांगो जो लाइक कोर्ट एक्सेप्ट कर सके,
एंड पैरेलल फाइलिंग्स आप रखो बाकी एजेंसीज के अंदर भी, कि किसी और एजेंसी से रिलेटेड अगर वो मैटर कनेक्टेड है तो वो भी करो। ठीक है, एंड देन आप करंट जो भी एक्ट्स है, प्रोसीडिंग्स है, करंट जुरिस्डिक्शन चेंजेस, सबको वेरीफाई करो, नोटिफिकेशन जो भी नए नए आए हैं, सो मेक श्योर दैट यू आर अपडेटेड। सो एज अ लॉयर यू नीड ऑल दीज थिंग्स, एंड एज अ इंटर्न ऑल्सो यू नीड ऑल दीज थिंग्स टू, लाइक अगर आपको ये पता है कि अच्छा ऐसे काम करता है, तभी तो आप सीख सकते हो चीजों को। This is a good area to practice. And if you want more guidance, you can connect to me. You can connect to the Overcity's like channel. You'll get all the guidance. And there's one group we have created for all of you so that you can ask your doubts. And if you get like any matter and if you need assistance from Overcity, that assistance can also be provided. And we'll share this in the group. And you can see form is there in the chat box. All of you can fill the forms. And hopefully we'll meet in next session. Till then, bye bye and take care. And also drop your like opinion if you like, if you like the session, or if you wanted more and you were expecting more from the session, you can drop that as well. I'm happy to see your suggestion.